بہت شکریہ. اور یہاں پر اگر آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی پروگرام اعتماد خیبر میں آپ سب کو خوش آمدید اینڈ تھینک یو کہ آپ لوگوں کا ساتھ ہے. ہر منگل اور بدھ کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اعتماد خیبر یہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کی جانب سے ٹیکس آگاہی کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو بتایا یہ جاتا ہے جناب کہ سروسز پہ سیلز ٹیکس کیا ہے یا اس سے جڑے معاملات کیا ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے ٹیکس جمع کرنے کی افادیت کیا ہے یا صوبے کی ترقی میں ٹیکس کردار جو ہے اس کے حوالے سے کیا گفتگو ہم کرتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ کے لیے منگل و بدھ کے سپاہی 3 سے 4 بجے تک پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف ہمارے جو چینلز ہیں وہاں سے آپ اس کو براہ راست سن پاتے ہیں. پختونخوا ریڈیو FM 92.2 پشاور, پختونخوا ریڈیو FM 92.4 ایبٹ آباد, 92.4 کوہاٹ اور FM 88 لکی مروت سے براہ راست. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب ہر بار ہمارے پروگرام میں کچھ نہ کچھ کہیں ایسے چیزیں ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جو کہ الگ ہوتی ہیں. اور آج بھی ہمارے مہمان موجود ہیں, میرے کو ہوسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں؟ آج ہم خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے سزا اور جزا, یعنی کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ٹیکس جمع ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے کیا معاملات جو ہے وہ طے کیے جائیں گے اور کن صورتوں میں آپ کے پیارے کی جانب سے جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کا سامنا کر سکتے ہیں اور کیسے سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے کو ہوسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. سلمان, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہو؟ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے. اور ساتھ ہی ہم جو ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی ویلکم کروں گی. عمران صاحب موجود ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر KPRA. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے الحمدللہ جی, تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی یہاں تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان, مزید جو ہمارے رابطے کے ذرائع ہیں وہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آپ ریڈیو میں بذریعہ ٹیلی فون شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 92142001. اس کے علاوہ آپ ہمیں KPRA کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. تو آپ وہاں پر بھی اپنا کامنٹس, جو جس طرح رابعہ نے بتایا سزا اور جزا کے حوالے سے جو بھی سجیشن ہو یا کامنٹس ہو, ہمیں اپنی رائے یا اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہم یہاں پر سٹارٹ کریں گے ساتھ ساتھ, تو جلدی سے چونکہ پروگرام میں سلمان ٹائم ضائع کیے بغیر جو ہے وہ ہم اپنے سوالات کا جو ہے وہ سٹارٹ لیتے ہیں. تو عمران صاحب آپ سے سوال یہی اب پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ باتیں کافی ہر پروگرام میں میری جلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آج بھی ہم سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ KPRA جو ہے وہ ٹیکس سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. KPRA میں دیکھیں مختلف سیکشنز ہیں, آلموسٹ 93 سیکشن ہیں ہمارے ایکٹ میں کہ جو مختلف چیزوں کو گوان کرتی ہے. لیکن جو جہاں تک بات ہے آفینسز کی اور اس کے پھر پینلٹیز کی, تو اس کو ہمارا جو مین سیکشن ہے سیکشن 53 آف دا خیبر پختونخوا سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2022 وہ گمان کرتا ہے, اور اسی کے تحت پھر مختلف جو آفینسز ہے اس کی پھر پینلٹیز اس میں دی گئی ہیں, جس کو ہم میرے خیال سے آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جیسے اتھارٹی میں سزا و جزا کا طریقہ کار کیا ہے, سزائیں دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ لیٹ سے ایک ٹیکس پیئر آفینس کرتا ہے کوئی, سے وہ ریٹرن فائل نہیں کرتا, منتھلی جو ان کی ریٹرن ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر اس نے آفینس کیا, اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ایک شو کاز نوٹس جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اگینسٹ اگر اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے تو وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے اس ایکٹ کو کہ اس نے کیوں یہ غلطی کی ہے یا یہ آفینس اس نے کیوں کیا ہے. اگر تو اس کا ویلڈ ریزن ہے اور جو ایکسیپٹیبل ہے اسیسنگ آفیسر یا جس آفیسر کی جو ریزولیوشن ہے اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو اسی سٹیج پہ اس کو معاف کر دیتا ہے. نہیں تو پھر آرڈر پاس کرتا ہے, اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ جو اپیل کے جتنے بھی ہمارے فورمز ہیں کلیکٹر اپیل سے شروع ہو کے تو آپ سپریم کورٹ تک آپ اس کو پھر اپنے جو رائٹس ہیں اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا, بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا جی. اور ویسے چونکہ یہ ذرا ابھی چونکہ سلمان سیگمنٹ کی طرف ٹائم ہو گیا ہے جانے کا, لیکن جو ابھی اس کی جو وہ ہے ڈیٹیل جو تفصیل ہے قوانین کی خلاف ورزی کا آپ نے کہا کہ اس پہ ہم بات کریں گے, تو آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ ہم ایک انٹرویو کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ہم یہی تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جی یہ خلاف ورزی پر جو کارروائی کی جا سکتی ہے تو وہ تفصیلاً آپ ذرا بتائیے کہ اس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. سو لسن, اس وقت یہاں پر ہمارے پاس ایک انٹرویو موجود ہے, صادق شاہ انسپیکٹر نان کارپوریٹ KPRA, اور ان کے حوالے سے ایک انٹرویو یہاں پروگرام میں شامل کرنے لگی ہے. پھر اس کے بعد میں دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا نام صادق شاہ ہے اور میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی میں ایز انسپیکٹر نان کارپوریٹ کام کر رہا ہوں. اچھا جی, آپ یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی میں سزا اور جزا کا کیا طریقہ کار ہے؟
देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की जो सबसे ज़्यादा कोशिश होती है वो ये होती है कि लोग वॉलंटरली मतलब कंप्लायंस की तरफ आ जाएं। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है, और हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उसको इनकरेज करने के लिए हम सर्टिफिकेशन वगैरह का वो भी करते हैं, तमाम भी करते हैं। अगर फिर भी मतलब कोई बार बार पूछने के बावजूद अगर वो कंप्लायंस की तरफ नहीं आता, तो सज़ा के मुख्तलिफ हमारे साथ सेक्शंस मेंशन है हमारे एक्ट में, उसी के मुताबिक हम उसको सज़ा देते हैं थ्रू और एक्ट और एज पर लॉ, ताकि कोई गैर कानूनी या इस तरह का रवैया ना हो सके। जो एक्ट में स्पेसिफाइड है उसी के मुताबिक हम उसको शोकाज नोटिस वगैरह करते हैं। अच्छा जी, कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें सारिफीन को सजाएं दी जा सकती हैं? इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स है जो टैक्स पेयर करते हैं, जिस तरह नॉन फाइलिंग है सबसे बड़ा इशू। अगर वो हर महीने के 18 तक फाइलिंग ना करे तो उस पे पेनल्टी लगती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो प्रॉपर सेल टैक्स इनवाइस जनरेट ना करे तब भी उस पे पेनल्टीज लगती है। ये तीसरी ये है कि अगर कोई टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा हो और वो केपरा के साथ रजिस्ट्रेशन ना करे तो उसकी भी सजाएं होती हैं। गोशवारे जमा न करने पर सजा उनको क्या हो सकती है? गोशवारे जमा इस तरह किए जाते हैं केपरा में जो प्रोसीजर है कि अभी जो मंथ चल रहा है इसका गोशवारा नेक्स्ट मंथ के 18 तक आपने जमा करना है। अगर नेक्स्ट मंथ के 18 से कोई बंदा लेट हो जाए तो 100 रुपये पर डे उस पर जुर्माना लगता है, और अगर 10 दिन इसमें गुजर जाए तो उस पर डायरेक्टली 5000 का जुर्माना एक ही पीरियड का लग जाता है। सही है जी। इस ज़िम्मन में सारिफीन को कोई रियायत दी जाती है या दी जा सकती है कि नहीं? बिल्कुल जी, इसमें सारिफीन को रियायत ये दी जा सकती है कि अगर वो शुकास के दौरान अपनी रिप्लाई जमा कर ले प्रॉपरली, जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर, और कोई वैलिड रीज़न भी वो दे दे कि किस वजह से उसके गोशवारे लेट हुए थे, तो उसको मौका दिया जा सकता है। और दूसरा यह है कि अगर उस पर असेसमेंट ऑर्डर भी हो जाए तो हमारा एक फोरम है कलेक्टर अपील, उसमें भी जाके वो अपना अपील दायर कर सकते हैं और अपना रीज़न पेश कर सकते हैं कि ये इस वजह से मेरे गोशवारे लेट हुए थे जिसकी वजह से मुझ पर जुर्माना लगा है। अच्छा जी, आप ये बताइए कि कोई होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर या दीगर कारोबारी इदारे अगर सारिफीन से टैक्स वसूल करने के बावजूद केपरा के साथ जमा ना करे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए जी, अगर कोई ऐसा कोई ऐसी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा हो जो केपरा का टैक्स भी ले और अपने साथ रख ले, केपरा को जमा ना करे, तो ये फ्रॉड के ज़िम्रे में या टैक्स एवेजन के ज़िम्रे में आता है। तो उसकी हमारे एक्ट में अपने स्पेसिफाइड पेनल्टीज है, उस पर 100,000 पेनल्टी डायरेक्ट लग सकती है, या जितना भी वो टैक्स है उसका भी कुछ हिस्सा उस पर लग सकता है, और तीसरी सूरत में उसको इम्प्रिजन भी हो सकती है अगर जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है उसको ये बात मौजू लगे। कोई इदारा या फर्द अपने टैक्स रिकॉर्ड में टेम्परिंग करे तो उसके साथ क्या किया जाता है? इस सूरत में जी देखिए, हमारे एक्ट में क्लियरली मौजूद है कि जो भी टैक्सेबल एक्टिविटी हो उसका जो ओनर हो वो अपने कारोबार का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। ये एक्ट के अंदर मौजूद है कि उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर अपने साथ रखेगा। अगर किसी भी टाइम इदारे को उसके रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी तो अपना रिकॉर्ड जमा करेगा। अगर उसको मतलब वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो इस पे भी उस पर पेनल्टी लग सकती है मेंटेन रिकॉर्ड ना करने का। रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिर्फ सिंपली ये है कि जितनी भी वो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, जितनी भी मतलब उसका डेली सेल है या उस पर जो सेल टैक्स बनता है उसका उसके साथ प्रूफ होना लाजमी है, क्योंकि इदारा किसी भी वक्त उसके रिकॉर्ड के बारे में पूछ सकता है। जी जनाब, वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप लोगों का हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एतमाद खैबर में आप सबको खुश आमदीद, और इस वक्त आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट आप लोगों के साथ मौजूद आरजे तबस्सुम, और मेरे साथ मेरी होस्ट जो है सलमान मौजूद है। प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बात आज हम क्या कर रहे हैं? बात हम आज ये कर रहे हैं कि जो KPRA की तरफ से सजा जजा का अमल होता है कि जहाँ पर आपको KPRA की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है कि अगर कोई आपने डॉक्यूमेंटेशन जमा नहीं की, आपने टैक्स वक्त पे जमा नहीं किया, या आपने किसी भी एक्शन का रिएक्शन आपने दिया है, तो इस हवाले से क्या चीज़ें जो है वो हमारे नॉलेज में इजाफा कर सकती हैं। जी इमरान साहब।
अच्छा, जो शुरू में आपने पूछा ना कि कानून की खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई की, जी वो तफसीलन आपसे जानना हाँ, चाहेंगे। तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारा KP सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2022 जी उसके सेक्शन 53 के तहत मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, तकरीबन 19 किस्म की ऑफेंसेस हैं जिसके अगेंस्ट डिफरेंट पेनल्टीज हैं। उसमें कुछ पेनल्टीज ऐसी हैं कि जिनको तो आप सिर्फ एक जुर्माने से ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, अच्छा। जुर्माना अदा करके, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि उसमें आपको फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और या बसूरत दीगर आपको दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। अच्छा, मतलब जुर्माना भी अगर आप जेल भी जुर्माना भी। तो ये 19 जो ऑफेंसेस हैं ये मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं और मुख्तलिफ इसकी सजाएं हैं। अच्छा, इन शॉर्ट इमरान साहब इसमें ये किन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके यानी कि फैसलों के अगेंस्ट जाते हैं या बेसिकली ये नॉन कंप्लाइंट लोगों के लिए है। अच्छा। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारा जो टैक्स लॉ है जिसके साथ अगर कोई कंप्लाई करता है तो फिर उसके लिए ये सजा उसके लिए नहीं, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से इसके साथ कंप्लाई नहीं करता, उसकी अपनी रीजन हो सकती है। लेट्स से कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और वो देखता है कि ये तो एक सरकारी इदारा है, टैक्स भी देना पड़ता है और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता, अब उसकी अच्छा, अपनी सजा है। सही। अब लेट से वो रजिस्टर्ड तो हो गया लेकिन अब वो इनवाइस प्रॉपर इशू नहीं करता। ठीक, ये एक दूसरी ऑफेंस है कि जो कानून में एक तरीकेकार मौजूद है कि आप आपको किस उसको follow तरीके नहीं से करते। इनवाइस इशू करना है, नहीं तो फिर आपको सजा, क्योंकि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ना अपने। लेट से अगर हमारा कोई ऑफिसर उधर जाता है और वो चेक करता है तो अगर कोई जिग या कोई इर्रेगुलर सी चीज उन्होंने मेंटेन की है तो फिर हमारे लिए भी ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि चीजें प्रॉपरली मेंटेन हो। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया 19 किस्म की ऑफेंसेज हैं, तो मुख्तलिफ ऑफेंसेज हो सकती है। नॉन फाइलिंग एक ऑफेंस है, नॉन इशूइंग ऑफ प्रॉपर टैक्स इनवाइस एक ऑफेंस है। कोई बंदा रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता, किसी बैंक को हमने लिखा है कि फला बंदे का अकाउंट अटैच कर दो, वो उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है या वो नहीं कर रहा, उसकी अपनी सजा है। कोई विदहोल्डिंग एजेंट है, उसने पैसे तो ले लिए हैं, विदहोल्ड कर दिए हैं, लेकिन अथॉरिटी के पास जमा नहीं करवाई या जमा किए हैं लेकिन लेट किए हैं, उसकी अपनी सजा है। मतलब जो एग्जैक्टली जो आपके कहने का बिल्कुल एग्जैक्टली ये मकसद है और जो बात हम समझ रहे हैं सुनने वाले भी समझ रहे होंगे कि जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं तो सजा उसकी बनती है। एग्जैक्टली कानून में कानून में हमारे जो एक्ट है जो हमारे इदारे को गवर्न करता है, उस एक्ट में सारी चीजें मौजूद हैं। आपने रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करना है, आपने अगर रजिस्ट्रेशन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, किस टाइम में करनी है, कितने हद तक आपके पास चांस है कि चलो आप अवॉइड करें उस दिन तक, फिर आप रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद आपने फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो पेमेंट का डेट है, पेमेंट की डेट होती है नेक्स्ट मंथ। लेट से अगर अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त की पेमेंट होती है 15 सितंबर तक। अच्छा। 1 से लेके 15 सितंबर तक आपके पास टाइम होता है कि आप इस दौरान अपनी प्रीवियस मंथ की कैलकुलेशन करें टैक्स की, और इसको आप किसी भी डेट, तो फाइनल डेट है 15 तक आप जमा करा दें। अदर देन टेलीकॉम और जो ऑयल एंड गैस की हमारी जो सेक्टर है उसके लिए फिर जो पेमेंट डेट है वो 21 है। इसी तरह अगर फिर ये 3 दिन इसके बाद 18 तारीख तक आपको रिटर्न का टाइम दिया जाता है कि आपने तो टैक्स जमा कर दिया, आप इसकी प्रॉपर डिक्लेरेशन कर दें, रिटर्न अथॉरिटी के पास जमा करा दें कि ये टैक्स आपने किस मद में सेल्स की है या विदहोल्डिंग की है, किस मद में की है और किस से काट के की है, किसको सर्विसेज दे के आपने ये सेल्स करके आपने ये टैक्स दिया है। ठीक है, तो अदर देन टेलीकॉम और ऑयल एंड गैस के लिए 18 तारीख है, और ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम के लिए 25 तारीख है। सही यानी इतना सलमान अगर हम बात करें इसके ऊपर तो इतना टाइम दिया गया है ऑलरेडी आपको, उसके बाद जो है ना सजा और जजा का जो उसके बाद भी अगर आप ना करें तो फिर तो सजा जजा बनती है। ठीक इमाम अहमद साहब से इंटरव्यू का बारे में सवाल है कि जिस तरह सादिक साहब ने भी बताया कि अथॉरिटी को ज्यादातर मसला जो है वो नॉन फाइलिंग में आता है, तो हम कोशिश करें कि आप समझाएं कि नॉन फाइलिंग किसे कहते हैं और इसके अलावा ऐसे दूसरे इश्यूज हैं जो अथॉरिटी को ज्यादा उससे मसला सामने आता है। अच्छा, इस तरह है कि नॉन फाइलिंग बेसिकली नॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न को कहते हैं। अब हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं कि वो पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन फिर रिटर्न नहीं जमा कराते, और उनका ख्याल ये होता है कि चूंकि मैंने पेमेंट कर दी है तो मेरा रिटर्न ऑटोमेटिकली जमा हो चुका है। हालांकि पेमेंट एक डिफरेंट चीज है, उसके रिटर्न मशवरा जमा करना एक डिफरेंट चीज है। इस तरह बिल्कुल दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पेमेंट के लिए 15th ऑफ एवरी मंथ होती है, मतलब आप प्रीवियस मंथ का जो टैक्स है वो नेक्स्ट मंथ
के 15 तक, वो 1 से लेके 15 तक, ज़रूरी नहीं है कि आप 15 को करें. किसी का कारोबार छोटा होगा तो वो 2 तारीख तक अपनी कैलकुलेशन पूरी कर सकता है, तो 2 तारीख को पेमेंट करें. किसी का ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको 15 डेज का टाइम लग सकता है, 14 डेज का, तो वो उस टाइम तो वो पेमेंट 15 डे. अब 15 डेट को अगर उसने पेमेंट कर दी तो इट डजंट मीन कि उसने उसकी डिक्लेरेशन भी होगी. अब उसको गोशवारा जमा कराना है 3 दिन बाद, यानी 18 तारीख तक. तो वो भी ज़रूरी है. अगर वो नहीं करता तो फाइलर और नॉन फाइलर, हमारे एक्ट में तो खैर एक्टिव और नॉन एक्टिव है, फाइलर और नॉन फाइलर FBR में होता है, तो वो फिर वो इशू आ जाता है. और फिर उसके बाद जो जुर्माना है नॉन फाइलिंग का, कि जिस तरह मेरे कुलीग ने, सादिक शाह साहब ने कहा कि नॉन फाइलिंग का इशू हमें ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से को डील करते हैं. उस सेक्टर में इशू ये है कि उस सेक्टर में इंडिविजुअल और AOP टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की रिटर्न किस तरह जमा करना. हालांकि एक सिंपल सा प्रोफार्मा है, इसको हम अभी हमारी अथॉरिटी, हमारी मैनेजमेंट इसके ऊपर लगी हुई. इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ये भी हो जाएगा कि हम इस रिटर्न को सिंप्लीफाई करेंगे इनके लिए. कि जो इनसे रिलेटेड खाने होंगे, अब रिटर्न एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट है. इस डॉक्यूमेंट में अब बहुत सी चीजें इनके साथ रिलेट नहीं करती, तो वो एक्स्ट्रा हटा दी जाएगी, ज़्यादा बेहतर है. हाँ, वो हम उनसे हटा रहे हैं ताकि सिंप्लीफाई हो और उनको पता हो कि बस ये 2-3 कॉलम मेरे से रिलेट करते हैं और मैंने इन्हीं को फिल करना है और किसी के साथ मेरा काम नहीं है. तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं. नॉन फाइलिंग, जिस तरह मैंने कहा कि रिटर्न ज़रूरी है, इसको नॉन फाइलिंग कहते हैं. पेमेंट करके आप फाइलर नहीं बनते या आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं बनते. इसी तरह इसका अपना फिर जुर्माना है, जिस तरह सादिक शाह ने कहा कि उसका जुर्माना है, लेकिन इन्होंने जो जुर्माना बताया वो हमारे जो प्रीवियस एक्ट था उस मतलब ये 30 जून से पहले जो यहाँ जब तक कानून लागू था उस तक था. अभी क्योंकि 1 जुलाई से थोड़ी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं एक्ट में, तो जो बंदा 18 तारीख के बाद रिटर्न जमा करता है, मतलब 19 को किया, तो पर डे उसको 300 रुपए जुर्माना होता है. 28 तारीख तक उसके पास ये क्वेश्चन होता है 10 दिन का. 10 दिन मतलब ये कि 300. लेकिन अगर 28 तारीख के बाद वो फिर किसी भी डेट को 29 को करता है या फिर 3 महीने बाद उस पीरियड का, उस मंथ का रिटर्न जमा करता है, तो फिर 9,000 रुपए पर पीरियड जुर्माना बनता है. जुर्माना उसका बनता है. ठीक हो गया. सलमान, यहाँ पर अभी दूसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन ये कि वो हम एक काम करते हैं, सेगमेंट में जाने पड़ेंगे. नेक्स्ट सेगमेंट हम जो है प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद बात का सिलसिला में से जो है वो स्टार्ट करेंगे. आपको जल्दी से बता दूं, फिर आप लोग कॉल करना चाहें 92142001 पे कॉल करके सवाल आप पूछ सकते हैं. खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी न्यूज अपडेट्स के साथ मैं हूं हिना गुल. खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी साउथ रीजन ने बनू में एक मुहिम के दौरान होटल और रेस्टोरेंट्स के दौरे किए हैं और मालिकान को सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने की ताकीद की. KPRA के मुताबिक साउथ रीजन के ओहदेदारों ने बनू शहर में वाक़िया होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकान से मुलाकातें की और इनको सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और केपरा से मुतल्लिक मालूमात फराहम करके टैक्स बरवक्त अदा करने की ताकीद की. इस मौके पर असिस्टेंट कलेक्टर केपरा अख्तर रसूल ने मालिकान पर जोर दिया कि वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाएं. बसूरत दीगर इनके खिलाफ केपरा के कवायद और जवाबित के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. होटल्स और रेस्टोरेंट्स मालिकान ने भी केपरा के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई. अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की USAID के PRM ने खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के काम के मयार को मजीद निखारने और डिजिटलाइज करने के लिए ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया है. USAID के PRM के मुताबिक ERP निज़ाम पहले मरहले में इदारे के 5 शोबों में लगाया गया है, जिनमें एडमिन, HR और पेरोल, फाइनेंस और अकाउंटिंग, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, नोटिस मैनेजमेंट सिस्टम और कोर्ट केसेस मैनेजमेंट शामिल है. इन शोबों में ERP की तकमील रवां साल अक्टूबर के महीने तक की जाएगी, जिससे इन शोबों के काम न सिर्फ डिजिटल हो जाएंगे बल्कि इनमें आसानियां भी आएगी. खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ माहाना गुशवारे जमा करने में 2 दिन रह गए हैं. टैक्स पेयर्स अथॉरिटी के पास अपने गुशवारे इस माह की 18 तारीख तक जमा करवा सकते हैं और बर वक्त जमा न करने की सूरत में इन पर जुर्माना आयद किया जा सकता है. खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2022 के मुताबिक गुशवारे जमा न करने की सूरत में रोजाना की बुनियाद पर 300 रुपए और 10 दिन गुजरने पर मजमूई तौर पर 5,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है.
वेलकम बैक अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग फ्रॉम 92.2 पेशावर। और आपके साथ मौजूद आरजे तबस्सुम और मेरे साथ मेरे को होस्ट सलमान मौजूद है, मेरे मौजूद मेहमान मौजूद है यहाँ पर KPRA से तशरीफ फरमा है इमरान साहब, असिस्टेंट कलेक्टर है। इनसे बात आज क्या हो रही है, बात सिंपली सिर्फ इतनी हो रही है कि जो हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स हैं, तो अगर ऐसे कोई हालात क्रिएट हो जाते हैं कि जहाँ पर अगर वो नहीं भी मतलब उन्होंने कोई अमल का रद्द अमल दिखाया है, तो वहाँ पर सजा और जजा का क्या अवामिल जो वो हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या जो है ना कैसे उनसे जो है बचा जा सकता है। लेकिन सलमान, आपके पास जो क्वेश्चन इसी हमारे से ही है, तो आप इमरान साहब से पूछेंगे, फिर उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, सवाल ये कि सेल टैक्स से मुताल्लिक़ क़वानीन में तमाम जराइम और गलतियों के लिए सज़ाएँ मुख्तस हैं, क्या इन सज़ाओं में अथॉरिटी की जानिब से कोई रियायत भी दी जाती है या नहीं? अच्छा, इस तरह है कि चूँकि लेट्स ऑफेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम चूँकि ज़्यादातर ये नॉन फाइलर्स को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा डेटाबेस है उसमें इंडिविजुअल और AOP रिलेटेड जो टैक्स पेयर्स हैं वो ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, तो उन एरियाज़ में हमें नॉन फाइलिंग का ज़्यादा इशू आता है। अब लेट्स से नॉन फाइलिंग का एक बंदा है, नॉन फाइलिंग उसने एक ऑफेंस उसने की है, उसका जुर्माना ये है कि उसने पर पीरियड 9,000 रुपये जमा करना है, ठीक है। तो उसने अगर लेट से कोई उसके पास कोई वैलिड रीज़न है, अब वैलिड रीज़न क्या हो सकता है, लेट से अभी रिसेंटली हज के दिन गुजरे हैं, वो हज के लिए गया था तो उसे वो पीरियड मिस हो गया रिटर्न जमा करना, या वो बीमार था इतना सख्त कि वो रिटर्न जमा नहीं करा सकता था, हॉस्पिटल में था, उसके पास अपनी जो सर्टिफिकेट है जो डॉक्टर देता है उसके पास है, इस तरह के और वैलिड रीज़न, आउट ऑफ कंट्री था, कुछ और इश्यूज थे, हर की छुट्टियाँ थी या सिस्टम हमारा डाउन था, कभी कभार नेटवर्क में भी इशू आ सकती है। सही। तो इस तरह की अगर वो हमें रीज़न दे रहा है और असेसिंग ऑफिसर जो कंसर्न ऑफिसर है उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है, तो वो उसी स्टेज पे उसको एक्सेप्ट कर सकता है और वो उसके फेवर में ऑर्डर पास कर देता है कि मैंने आपको इस पीरियड के लिए माफ़ कर दिया, आइंदा जो है आप अपनी कंप्लायंस ठीक करें। लेकिन लेट से अगर वो हैबिचुअल नॉन फाइलर है या हैबिचुअल ऑफेंसर है, बार बार एक गलती को दोहरा रहा है, तो फिर उसकी आदत से मजबूर है, आदत है उसकी और है ऐसे, तो फिर उसको फिर कोई रिलीफ इस स्टेज पे नहीं मिलता अथॉरिटी की तरफ से या अथॉरिटी के ऑफिसर की तरफ से। लेकिन हाँ, उसके पास ऑप्शंस हैं, वो अपील में जा सकता है, कलेक्टर अपील साहब के पास, अगर उधर भी वो केस हारता है तो फिर ट्राइब्यूनल में हमारा ट्राइब्यूनल में जा सकता है, ट्राइब्यूनल में भी नहीं होता तो शावर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये कि एक गलती ना करे ना, तो फर्स्ट टाइमर को नॉर्मली ऑफिसर भी माफ कर देता है, अगर उसके पास वैलिड रीजन नहीं करता तो फिर अपील में हो जा सकता है, के पास ऑप्शन होते हैं। अगले सेगमेंट का टाइम हुआ चाहता है, इस यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे अवाम आगाही पैगाम, और फिर उसके बाद जो है मजीद आपको यहीं पर ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपका शुक्रिया, आप तो मुझे जानते तक नहीं, फिर भी मेरी तालीम का सारा खर्चा बर्दाश्त किया, मुझे फ्री किताबें दी, मुफ्त पढ़ाया, आप तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मुझे आप पे फख्र है, मेरा टैक्स पेयर मेरा हीरो। कहीं सड़क, कहीं स्कूल, कहीं इलाज की सहूलत अभी तक नहीं पहुंची। न जाने कितने लोग हैं जो आपके टैक्स की राह देख रहे हैं। आप भी इनके दोस्त, मोहसिन और हीरो बन सकते हैं। अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अदा कीजिए और बन जाएं पाकिस्तान के हीरो। ये पैगाम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम एतमाद खैबर में, आप सबको खुशामदीद और बहुत शुक्रिया जनाब पेशावर से बराह रास्त ये आपके लिए पेश किया जा रहा है। और साथ साथ इसके अलावा बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ से आप हमें सुन सकते हैं, वो मैं आपको वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर शेयर करूंगी, लेकिन सवाल चूंकि ज़्यादा जरूरी है, पहले वो मैं यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद आगे चलेंगे। जी इमरान साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज सज़ा और जज़ा के हवाले से, KPRA से जुड़े कुछ ऐसे जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो एक्शन या रिएक्शन के हवाले से बात हो रही है, लेकिन कोई इदारा या फर्द अपने टैक्स रिकॉर्ड में अगर वो टेम्परिंग करते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है?
اچھا یہ بڑا سیریس آفینس ہے, یہ ہمارے سیکشن 53 اور سیریل نمبر 8 آف دا ٹیبل اس کے اوپر مینشن ہے اس آفینس کے سے بھی ریلیٹڈ, اور پھر اس کی اگینسٹ جو سزا ہے اس کے بھی مطلب وہ بھی مینشن ہے. یہ بڑا سیریس آفینس ہے. نارملی لوگ کرتے ہیں ریکارڈ کے ساتھ مینیپولیٹ کرتے ہیں, ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا فالس ڈکلیریشن کرتے ہیں, تو اس کے لیے پھر جو سزا سرکار نے رکھی ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے پر اس کا جو جس پیریڈ کا ریکارڈ ہے, یا 5% یا 100% آف دا ٹیکس انوالو. اگر اس پیریڈ میں کوئی ٹیکس انوالو تھا تو اس کا 100% اس کو جرمانہ بھی, لیٹ سے اگر 1 لاکھ روپے ٹیکس ہے تو 1 لاکھ روپے اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا. تو وہ یہ ایک وہ ہے. پھر فردر اس کو ہم مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا آفینس بہت زیادہ سیریس ہے اور اس نے 1 ساتھ 2-3 غلطیاں کی تو پھر اس کو امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس کو اسپیشل جج کے سامنے پیش بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر تقریباً 5 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے جہاں زیادہ کی آواز سنی جا رہی ہے کہ بھائی اتنے ہم سیریس جو ہے پروگرامز ہم لوگ کر رہے ہیں یا ہم اتنے ضروری ٹاپک کا ہمیشہ ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو بہتر یہ کہ اس پر غلطی نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو جی سلمان آپ کے پاس سوال ہے. جیسا آئین نے بتایا کہ کوئی کاروبار غلطی سے سروس لینے والے فرد کو قانون میں کیے گئے ٹیکس سے زیادہ چارج کرے, جس طرح آپ نے بتایا, تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے, اور وہ ٹیکس اس فرد کو واپس کرنا ہوگا یا پھر وہ اتھارٹی کے پاس جمع ہوتا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اس ایکسیس ٹیکس کے لیے ہمارا ایک سیکشن ہے, اور اس سیکشن کے تحت اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ ٹیکس لیتا ہے, اول تو اس کو لینا نہیں چاہیے, اس کو رپورٹ کریں, ٹھیک ہے, جو اپلیکیبل ٹیکس ریٹ ہے اگر اس کے اوپر وہ لے رہے تو اتھارٹی کے اس کے اوپر جو کنسرن آفیسر ہے وہ ایکشن لیتا ہے, اور اس کے لیے اس کی اپنی ایک سزا ہے, ٹھیک ہے. فالس ڈکلیریشن یا اور اس کو کہتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ آف ٹیکسز, تو اس میں اس کو سزا مطلب اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ٹیکس اگر وہ لیتا ہے اور اس نے وہی ٹیکس سارا کا سارا مطلب جو زیادہ ٹیکس اس نے لیا ہے وہ اتھارٹی کے پاس جمع کر دیا, تو پھر اس کی واپسی کی کوئی اس میں ہمارے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے سچ کہ ہم واپس کریں, بلکہ قانون میں لکھے ہیں کہ وہ واپس نہیں ہو سکتی. اوکے فائن. اچھا اس میں سر ہمیں ایک شارٹ آنسر دیجیے گا, پھر مجھے بات جو ہے اگلے سیگمنٹ کی جانب جانی ہے کہ ایسے افراد کے خلاف سروسز سیلز ٹیکس ایکٹ میں بیان کی گئی سزا کے علاوہ دھوکہ دہی کا مقدمہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, جس طرح میں نے کہا کہ دھوکہ دہی تو نہیں, ہم ٹیکس کے الفاظ میں اس کو دھوکہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اوبویسلی وہ کر بھی رہا ہے. اس طرح میں نے کہا کہ اگر وہ ڈاکومنٹس کو الٹر کر رہا ہے, اس کو چینج کر رہا ہے, اس میں مینیپولیشن کر رہا ہے, یا ڈکلیریشن فالس ڈکلیریشن کر رہا ہے, جو ایکچوئل ڈکلیریشن وہ نہیں کر رہا, تو پھر ہم اس کو جو ہمارا جو کنسرن آفیسر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے پروسیکیوشن کی, اور وہ اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور اس کو پھر اسپیشل جج کے سامنے پیش کر سکتا ہے, اور اسپیشل جج جو ہے اس کو 5 سال تک کی سزا دے سکتا ہے, اور یا سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی اس کو کر سکتا ہے. رائٹ, بالکل صحیح. تقریباً دیکھیے ملی جلی ساری باتیں ہیں سلمان, اور ظاہری بات ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور جتنے سننے والے ہیں خیر ان کو ہم ایک میسج یہاں پر دے رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ ہر عمل سے پہلے صرف یہ سوچنے کی غلطی ہی نہ کریں, تو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. 12 جناب اس یہاں پر جو ہے ایک رپورٹ اسے میرے پاس موجود ہے, میرے پروگرام کا حصہ ہے, اسے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد مزید آپ سے بات چیت کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ریونیو اتھارٹی نے 12 نوٹسز کے باوجود بنو میں ایک ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے جواب نہ ملنے پر گزشتہ دنوں اسے 1 لاکھ روپے جرمانے کا شوکاز جاری کر دیا. مذکورہ ہوٹل کے خلاف کارروائی خیبر پختونخوا سروسز سیلز ٹیکس ایکٹ 2022 کے تحت گاہک کو انوائس جاری نہ کرنے پر کی گئی ہے. KPRA ساؤتھ ریجن کے اسسٹنٹ کلیکٹر اختر رسول کا کہنا ہے کہ بنو ریجن میں سروسز سیلز ٹیکس کے نادہندگان کے خلاف کارروائی پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے. ہم نے جو ابھی چھاپے مارے بنو سٹی میں, تو اس میں ہم زیادہ تر ان لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, ان سروس پرووائڈرز کو جو اپنے ریٹرنز نہیں فائل کر رہے یا ریٹرنز تو فائل کر رہے لیکن وہ ٹیکس کوئی بھی اس ہاتھ میں پے نہیں کر رہے. تو اس کے پیچھے ہم جو ہے نا 2-3 دن سے پڑے ہوئے ہیں. تو ساتھ میں ہم جب اس کے ہوٹل یا ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں تو اس کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں, قانونی پیچیدگیوں سے بچیں, اور اس کی جو کسٹم کو انوائس بھی تھے وہ چیک کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ایک مشہور ریسٹورینٹ ہے, اس پہ اس کی ایک انوائس ہم نے اٹھائی, وہ ایز پر ایکٹ انوائس اس نے ایشو نہیں کیا تھا, تو اس کو ہم 1 لاکھ روپے کا شوکاز کر دیا.
असिस्टेंट कलेक्टर ने मजीद बताया, खैबर पुख्तनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के चापों में टैक्स नादहिंदा को मौका पर जुर्माना नहीं किया जाता, बल्कि जुर्माने के लिए बाकायदा एक निज़ाम को फॉलो किया जाता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं और हमारे उसमें डिफरेंस ये है कि हम जुर्माना जब लगाते हैं तो हम कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डीसीज या असिस्टेंट कमिश्नर्स की तरह कोई जुर्माना नहीं लगा सकते। हमारे जो जुर्माने या पेनल्टीज होती है उसमें हमारे कानून के मुताबिक हमने पहले उसको शुकाज करना पड़ता है। शुकाज में ये है कि हम उसको एक हीरिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर हम उसको देंगे, उसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगा सकते जुर्माने। हमारे एक्ट में यह है कि 10 लाख रुपए तक का कोई अमाउंट हो तो उसका असिस्टेंट कलेक्टर शुकाज नोटिस कर सकता है, 10 लाख से ऊपर हो और 25 लाख से कम हो तो उसका डिप्टी कलेक्टर कर सकता है, और 25 लाख से ऊपर हो तो फिर एडिशनल कलेक्टर करेगा। दूसरी जानिब मर्दान में KPRA के असिस्टेंट कलेक्टर मेहरान अहमद अख्तर रसूल के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए बताते हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देता तो फिर हम इनके रिकॉर्ड को कब्जे में लेते हैं, जिसमें खाता समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल होता है। एक्सेस टू रिकॉर्ड हम वो रिकॉर्ड उठाते हैं वहाँ से। इसमें ये है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम उठा सकते हैं, ये पावर्स है अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी के पास ये पावर्स भी है कि उसका पेपर रिकॉर्ड या अलाइव गैजेट्स वो भी उठा सकते हैं। उसमें जो हमारा रेलेवेंट जो रिकॉर्ड है अगर वो उसमें मौजूद है तो इसको हम सीज कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादातर सीलिंग ना करें। उन्होंने मजीद बताया कि खैबर पुख्तनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के किसी अहदेदार के पास ये इख्तियार नहीं कि मौका पर जुर्माना वसूल करे, बल्कि जुर्माना जमा करने का अपना एक अलग निज़ाम है ताकि शिफाफियत बरकरार रहे। ऑन द स्पॉट रिकवरी इस तरह नहीं होती कि हमारे अथॉरिटी के पास ये इख्तियार नहीं है कि हम डायरेक्ट एक बंदे से कैश लें। वो चालान बनाते हैं, वो बंदा खुद जाता है बैंक में जमा कर देता है, तो इस तरह हम जुर्माने आयद करते हैं। अरेस्ट पावर्स भी अथॉरिटी के पास है। अगर एक बंदा, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, अगर एक बंदा कंप्लाइंट नहीं है और वो टैक्स फ्रॉड उन्होंने किया हुआ है तो अथॉरिटी उसको समन भी कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है। खैबर पुख्तनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी को सूबे में खिदमात फराहम करने वाले ऐसे अफराद और इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और इन्हें जुर्माना करने का इख्तियार दिया गया है जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते, गोशवारे जमा नहीं करते, केपरा टैक्स वसूल या जमा नहीं करते, इनवाइस में धोखाधड़ी करते हैं और सर्विसेज सेल्स टैक्स एक्ट के तहत टैक्स चोरी के दूसरे ऐसे जराइम में मुलव्विस होते हैं। ताहम अहदेदारों का कहना है कि फिलहाल अथॉरिटी की जानिब से ऐसे अफराद और इदारों के खिलाफ नरमी बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पहले इन्हें समझाया जाए और जुर्माना और सजा को आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखा जाए। जी वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तबादुल खैबर और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे तबस्सुम और मेरे को होस्ट मौजूद हैं सलमान। और प्रोग्राम हो रहा है जनाब KPRA की जानिब से, इसमें हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमारी सर्विस पे सेल्स टैक्स है बेसिकली उससे क्या है, इससे जुड़े मामला क्या होते हैं, ये टैक्स जमा करने की अफादत क्या होती है, ये सूबे की तरक्की में टैक्स का किरदार जो है वो क्या होता है। जी सलमान। जी बहुत शुक्रिया, रिपोर्ट आपने सुनी। इस हवाले से इमरान साहब से अच्छा सलमान, यहाँ पे कौन है, हम कॉल प्रोग्राम में शामिल कर रहे थे, उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ कौन है जनाब? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आदिल अवान। जी आदिल, कहाँ से बात करें? मानसेरा से बोल रहा हूँ। जी आदिल, क्या पूछना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। शुक्रिया। और मेरा एक सवाल है मैडम कि जो रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं वो अगर केपरा के साथ रजिस्टर नहीं है और मैं अगर शिकायत करना चाहूँ केपरा को कि ये रजिस्टर इसको रजिस्टर करवाए तो मेरे लिए कोई मुश्किलात तो पैदा नहीं होगी? बिल्कुल सही आदिल, ठीक है। और ये आप बड़ा जिम्मेदारी का काम करेंगे। और इसके अलावा और कोई आपका सवाल है? बस इसी पे आप मुझे गाइड करें और मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम आपका।
ऑलराइट, ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुनते रहिए, अभी आपके सवाल का जवाब प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ठीक है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। मैं सर क्या कहेंगे कि अगर शिकायत आती है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए? बिल्कुल, ऑब्वियसली इस तरह है कि मुख्तलिफ आपके पास फॉरम्स हैं किसी भी ऐसे नॉन कंप्लाइंट बंदे को रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है? आप KPRA को डायरेक्टली भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आपका नाम सीधा एराज में रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं की जाएगी। आप सिटीजन पोर्टल है उसके जरिए भी आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उधर भी आपकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। और या हमारा जो ऑफिशियल पेज है उधर भी हमने ग्रीवियंस रिट्रीसल के लिए एक कॉलम ऑप्शन रखा है, उधर भी आप जो है हमें रिपोर्ट कर सकते हैं और आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसी को भी शो नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक है जी। रिपोर्ट के बारे में सवाल है कि अथॉरिटी के अहदेदारों ने अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए, आप क्या समझते हैं कि इस तरह छापे मारने से अथॉरिटी के हवाले से मनफी तासुर तो नहीं होगा? देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस एंगल से लेते हैं या किन हालात में करते हैं जी। बहुत सारे ऐसे हमारे पास मतलब ये है कि टाइम होता है कि हमें फिर मजबूरी होती है, करना पड़ता है, और ये मेनी टाइम्स हमने देखा है कि ये एक पॉजिटिव साइन जाता है मार्केट में, ना कि मनफी, क्योंकि अगर हम इन्फोर्समेंट ना करें तो फिर आपको लोग इजी लेना शुरू कर देते हैं, फिर आपको वो सीरियस नहीं लेते, फिर आपके साथ वो जो जितने भी हमने ऑफेंसेस जो हमारे मेंशन है उनमें से किसी ना किसी को वो ऑप्ट करके तो उसमें इवेजन या टैक्स जो है तो उसको छुपाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम किसी मार्केट में किसी भी एक लेट से किसी रेस्टोरेंट पे हमने इन्फोर्समेंट की, उसको जुर्माना किया या उसको सील किया या उससे रिकॉर्ड उठा लिया, तो ये खबर जो है पूरे सेक्टर में फैल जाती है। आजकल जिस तरह की कम्युनिकेशन होती है तो उसमें बिल्कुल मिनटों में ये खबर फैल जाती है कि कैपरा ने जो है तो फलां होटल से रिकॉर्ड उठा लिया या उसको सील कर दिया, तो वो जो और बंदे होते हैं कि जो कंप्लाइंस की तरफ नहीं आते वो भी फिर कंप्लाइंस की तरफ आ जाते हैं और प्रॉपरली कंप्लाइंस शुरू कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि इमरान साहब, मामलात होते हैं किसी एक सूबे से दूसरे सूबे के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के शहरियों के लिए, यहाँ पर अगर सर्विसेज ऐसी चल रही हैं तो वो भी सर्विसेज जो है उस पर सेल्स टैक्स वो देंगे, और अगर देंगे तो कितना %? देखिए, ये एक लंबा चौड़ा सा टॉपिक है, इसके ऊपर बड़ी सारी बहस हो सकती है। इमरान साहब, कॉल एक और आ गई है, प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे। जनाब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन सा, कहाँ से? मैं फहीम बोल रहा हूँ, मोहम्मद फहीम, पेशावर से। मोहम्मद फहीम है पेशावर से। जी फहीम, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? असल में जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कैपरा ने होटल्स की वो की है ना, दर्जाबंदी की है इन्होंने टैक्स के शरह के हवाले से। जी जी। तो हमें या किसी भी कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि वो जिस होटल या जो भी सर्विसेज वो ले रहा है कहीं से, तो वो कौन से दर्जे में उनकी टैक्स की शरह क्या है? और फिर दूसरा इसके साथ जो सवाल बनता है वो ये है कि अगर इन केस कोई होटल वाला या इस तरह का कोई वो सर्विस प्रोवाइडर वो टैक्स शरह से ज्यादा वो ले टैक्स ले और उसका बंदा कंप्लेन करे, तो उसकी फिर क्या सूरत हाल होगी? कस्टमर को ये करेंगे कंपेंसेट या नहीं, उनके खिलाफ ही बस कार्रवाई की जाएगी और वो जो टैक्स के पैसे हैं वो रिफंड नहीं होंगे? अच्छा, ठीक हो गया फहीम, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन को नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है, और जो गेस्ट है वो भी आपका सवाल अभी सुन रहे हैं, तो आप प्रोग्राम सुनते रहिए, अभी आपका सवाल का जवाब प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फहीम साहब, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। और जनाब फहीम साहब पेशावर से। अच्छा, इस तरह है कि ये चूंकि ये सेक्टर हमारा KPRA का फेस है, बेसिकली जो जितनी भी हमारी हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, हमारे ज्यादातर जो हमें कंप्लेंट्स आती हैं वो इसी सेक्टर में ज्यादातर आती है। और जिस तरह इन्होंने पूछा कि हमें रेट का किस तरह पता चलेगा, या हमने जो कैटेगरीज बनाई है, देखिए हमने बेसिकली 3 किस्म की कैटेगरीज बनाई हैं होटल्स में। एक है मल्टीनेशनल जो चेन्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं या जो चेन्स हैं, जिस तरह मैकडोनल्ड्स है, KFC है, मिस्टर कॉड है, इस तरह जो चेन्स में आती हैं, उनका रेट है 15%। ठीक है, वो आपसे टैक्स चार्ज करेंगे 15% के हिसाब से। दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी है वो है लोकल रेस्टोरेंट, जो लोकली इधर बिजनेस कर रहे हैं और उनके पास मकामी है और उनके पास प्रॉपर जगह है, मतलब ये कि उनका और सेटअप सही है, लेकिन वो ब्रांडेड कोई ब्रांड नहीं होटल नहीं चला रहे हैं, वो अपना कोई ब्रांड बना रहे हैं या लोकली कोई होटल खोला हुआ है, तो उसका फिर रेट है 8%। अगर तो उसका हमारा एक सिस्टम है IMRS,
इनवॉइस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, उसने वो हमने मतलब ये कि वो इंस्टॉल किया है, तो फिर उसका रेट है 5%। ठीक है, उसको ये मतलब ये कस्टमर को एक रिलीफ दी गई है कि आप उस होटल में जाएं कि जिधर IMRS हो, तो वो फिर आपको 5% टैक्स चार्ज करेगा। अगर तो IMRS नहीं है, नहीं लगा हुआ KPRA का, तो फिर वो 8%। तो आप बेशक उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास IMRS लगा हुआ है कि नहीं, आप इनवॉइस में भी चेक कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर इनवॉइस आपको दे रहा है तो वो 5% के हिसाब से, अगर सिस्टम जनरेटेड है तो वो ठीक है, उसके पास रिंग्स का जो IMRS का जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो लगा हुआ है। अदरवाइज अगर नहीं है तो 8%। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी। फिर एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हमने डिफाइन किया है एज अ ढाबा। अब ढाबा क्या है? ढाबे के लिए 2-3 शराइत हैं। उसमें ये है कि प्री कुक फूड आता होगा उसमें, मतलब ये है कि उधर उस प्रेमिसेस के ऊपर फूड जो है वो तैयार नहीं होगा, वो तैयार फूड उधर आता है। ठीक है, और उसके पास फैसिलिटी सीटिंग की कोई हाई फाई फैसिलिटी नहीं है, मतलब AC वगैरह ये चीज़ें उधर नहीं है, बस आम सी एक जगह है जिधर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। तो फिर इसको ढाबा कहते हैं, और इसका रेट है 1%। तो 3 किस्म के रेट्स हैं, 15% फॉर मल्टीनेशनल, 8% या 5% लोकल रेस्टोरेंट्स या लोकल जो इलाकाई जो रेस्टोरेंट्स हैं जो ब्रांडेड नहीं है, और तीसरा पे है ढाबा जो 1% है। अब जो आपने एक्सेस टैक्स की बात की, तो पहले तो आपको जिस तरह मैंने रेट्स बताया, अब आप इसको ज़हन में रखें और किसी भी होटल को इस रेट्स के अलावा कोई भी टैक्स ना दें, क्योंकि ये आज के दिन ये रेट्स एप्लीकेबल हैं। ये रेट्स आज के दिन एप्लीकेबल हैं, इसी के ऊपर आपसे टैक्स लिया जाएगा। एक्सेस टैक्स आप हरगिज़ ना दें, उसके साथ उसको बिल्कुल बताएं कि भाई ये हमें पता है कि KPRA का ये टैक्स है। अगर फिर भी आपकी बहस बढ़ती है तो बहस हरगिज़ ना करें, आप उसको रिपोर्ट करें, KPRA उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। और जहाँ तक एक्सेस अमाउंट की बात है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं कि जिसमें हम आपको वो पैसे वापस कर सकें, लेकिन ये है कि ये हम इंश्योर करेंगे कि वो एक्सेस अमाउंट भी हुकूमत के खजाने में जाए। ऑलराइट, बिल्कुल सही। इस वक्त यहाँ पर सेगमेंट का जो है टाइम होना चाहता है, तो जो एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि दूसरे मुल्क के दूसरे सूबों के साथ जो सर्विसेज चल रही हैं तो उस पर सेल्स टैक्स आता है या नहीं आता, होगा तो कितना % होगा। लेकिन सेगमेंट में प्रोग्राम में शामिल करें थे, उसके बाद इस सवाल को यहीं से शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम एतमाद खैबर में आप सबको खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। आप तो मुझे जानते तक नहीं, फिर भी मेरी तालीम का सारा खर्चा बर्दाश्त किया, मुझे फ्री किताबें दी, मुफ्त पढ़ाया। आप तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मुझे आप पे फख्र है। मेरा टैक्स पेयर, मेरा हीरो। कहीं सड़क, कहीं स्कूल, कहीं इलाज की सहूलत अभी तक नहीं पहुंची। न जाने कितने लोग हैं जो आपके टैक्स की राह देख रहे हैं। आप भी इनके दोस्त, मोहसिन और हीरो बन सकते हैं। अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अदा कीजिए और बन जाएं पाकिस्तान के हीरो। ये पैगाम आपके लिए अमरीकी अवाम और अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम एतमाद खैबर में। आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम चूंकि जा रहा है मराहिल की जानिब, तो इमरान साहब जैसे हम बात कर रहे थे कि दूसरे सूबे दूसरे मालिक के जो एक सिस्टम चल रहा है सर्विसेज का, तो वहाँ पर सेल्स टैक्स का क्या हिसाब किताब होता है, और अगर वो सेल्स टैक्स देंगे तो कितना देंगे, कितना %? अब जिस तरह मैंने कहा ना कि ये एक लंबा छोड़ा सा टॉपिक है। देखिए, 2 इसमें टर्मिनोलॉजीज आती है, ओरिजिनेशन ऑफ सर्विसेज और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इसके ऊपर अब दोनों के ऊपर कानून में दोनों के ऊपर टैक्स है। ठीक है, और टैक्स रेट जो है वो जो सर्विस दे रहे हैं वो जो भी है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है तो आजकल उसका रेट 15% है, तो 15% देगा KP का। अगर तो वो कोई सिक्योरिटी सर्विसेज हैं या कोई और इस तरह की सर्विस हैं जो क्रॉस जुरिस्डिक्शनल उसमें टेरिटरीज में आती हैं, तो जो रेट
है उसी रेट के हिसाब से टैक्स देंगे. लेकिन चूंकि ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है और ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है विद इन प्रोविंसेस भी और हमारे लिए भी, तो जिस प्रोविंस को इस वक्त जो टर्म सूट करता है या जो ओरिजिनेशन अगर किसी को सूट कर रहा है तो ओरिजिनेशन पे टैक्स ले रहा है, अगर किसी को टर्मिनेशन सूट कर रहा है तो वो टर्मिनेशन पे टैक्स डिमांड कर रहा है. लेकिन इन आइदर केस टैक्स दोनों सूरतों में है. ओके, नहीं देना है, लेकिन चूंकि आपकी बात की जरा डिटेल्ड एक टॉपिक है, अलग से इस पर बात की जा सकती है, इंशाल्लाह कोई मौका मिला जरूर से बात करेंगे. लास्ट जो हमारा सेगमेंट रह गया यहाँ पे, एक जो हमारा लास्ट सेगमेंट का हिस्सा है टेस्टिमनी जो मैंने प्रोग्राम में शामिल करनी है उसे यहाँ पे शामिल कर लेते और उसके बाद मजीद प्रोग्राम में आगे जाएंगे. हमारे साथ रहिएगा. रिफत अंजुम है और पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज ए मीडिया मैनेजर एंड कम्युनिकेशन काम कर रही हूँ. पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद अमराज़ कल्ब का अस्पताल है जो इससे पहले इस सूबे में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी. इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो दूसरे सूबों इलाज के लिए जाते थे, जैसे लाहौर हो गया, कराची, इस्लामाबाद. 18 माह के दौरान पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो अमराज़ कल्ब के मरीज है, अभी तक जो हमारी ओपीडी है, अगर उसकी मैं आदाद शुमार आपको बताती चलूँ तो 58,000 से ज़ायद जो है हमारे पास मरीज जो है वो सिर्फ ओपीडी में आए हैं. मतलब कि 60,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो ओपीडी आए गए हैं और उनको अमराज़ कल्ब की मुख्तलिफ नौइयत की जो शिकायत है उनका इलाज कराया गया है, उनका मुआयना हुआ है. इसमें अब तक जो है तकरीबन 16 से 1700 तक के करीब जो है वो ओपन हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं. तकरीबन 12,000 के करीब हमारी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफीज जो प्रोसीजर्स हैं वो हो चुके हैं. यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरीज भी हो चुकी हैं. खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत कार्ड का इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में या अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए किया गया है. और वो उसकी वजह ये है, उसका रीज़न ये है कि जो अमराज़ कल्ब के मरीज होते हैं उन पर काफ़ी खर्चा आता है. सेहत कार्ड एक मुआवजा है इस सूबे के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास टैक्सी का किराया तक नहीं होता, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड जमा करना पड़ता है और सेहत कार्ड पे उनका इलाज हो जाता है. अभी तक सेहत कार्ड पे तकरीबन 16,000 के करीब यहाँ पर लोगों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरीज, क्लोज हार्ट सर्जरीज, बच्चों के दिल के सुराख के ऑपरेशन, खवातीन के वाल्व चेंज करने के ऑपरेशन, तो ये सारे इसमें शामिल है. अगर हम बात करें एंजियोप्लास्टी की या एंजियोग्राफी की तो एक एंजियोग्राफी पे, सिंपल एंजियोग्राफी पे तकरीबन 20 से 25,000 रुपए का खर्चा आता है. स्टंट लगाने की अगर हम बात करें तो एक स्टंट पे 1.5 लाख तक का खर्चा आता है, 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा आता है, 180 तक उस पर खर्चा आता है. उससे अगर आप 2 स्टंट किसी को लगते हैं तो उसको डबल करें तो उस पर इतना खर्चा आता है. ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो 4 से 5 लाख तक का जो खर्चा है वो इस पे आता है. इससे ऊपर भी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो 7-8 लाख तक भी पहुंच जाते हैं. सेहत कार्ड हमारे टैक्स के पैसों से है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हुकूमत हमारा ही पैसा हमारे ऊपर लगा रहा है. तो मेरे ख्याल में जो हम टैक्स दे रहे हैं और उस टैक्स का सिला हमें मिल रहा है वो उसका मुंह बोलता सबूत सेहत कार्ड है. बाहर ममालिक में यही होता है कि वहां पर हर चीज आसानी से मिल रही हो तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि आप टैक्स का पैसा, अवाम टैक्स देता है तो वो टैक्स का पैसा उठा के लगा दिया जाता है. अगर हम ये टैक्स के पैसे ना देते और हुकूमत ऐसी कोई पॉलिसी ना बनाती तो मुझे नहीं लगता कि जो अभी पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हजारों में लोग आके अपने दिल का इलाज बगैर किसी 1 रुपए लगाए कर रही हैं, किसी को भी ये सहूलत मुयसर ना होती अगर हम टैक्स ना देते. तो मेरे ख्याल में टैक्स हमारा कौमी फरीज़ा है और हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए. जी
जनाब, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एतमाद खैबर में आप सबका खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पर सिलसिला जो है वो चल रहा है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज पर सेल्स टैक्स तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल हैं जहाँ पर अमल करत अमल अगर आ जाता है तो वहाँ पर सजा जजा भी बनती है। तो कैसे एक अवाम जो है या मैं या आप जो है कानूनी चाराजोई के सामने कर सकते हैं, वैसे कैसे बच सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे सवाल काफी पूछ चुके हैं। उनसे एक सवाल एक और है मेरे पास, वो मेरा आंसर ये है कि मुख्तलिफ सूरत हाल या जराइम की सजाओं के हवाले से अवामी शऊर पैदा करने के लिए, ये तो खैर मैं आपसे बल्कि लास्ट में एक मैसेज में आपसे इस पर ले लूंगी, लेकिन मुझे इससे पहले ये बताएगा कि क्या अथॉरिटी हर जून पर सर्विसेज सेल्स टैक्स 2022 के मुताबिक सजाएं देना यकीनी बनाती है या इस पर कोई रियायत दी जा रही है? बिल्कुल, जो ऑफेंसेस है अब उस पर भी डिपेंड करता है। अब जिस तरह नॉन फाइलिंग की हमने बात की तो उसमें हम थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स रखते हैं फर्स्ट टाइमर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसी हैं कि जिनमें हम रियायत पर नहीं दे सकते, जिस तरह अब फ्रॉड हो गया, फ्रॉड में कोई रियायत नहीं है, जिसने किया जो अगर उसके अगेंस्ट प्रूफ हो गई तो फिर जो कानून में जिस तरह है हम उसी के हिसाब से सख्ती के साथ उससे निपटने की कोशिश करते हैं। या रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में कोई रियायत नहीं है, कोई भी किसी भी बंदे के लिए कोई रियायत नहीं है, क्योंकि 19 किस्म के ऑफेंसेस हैं तो डिपेंड करता है कि ऑफेंस कौन सी है। अब इनवाइस इशू करना, प्रॉपर इनवाइस इशू करना, उसका 1 लाख रुपए जुर्माना है अगर कोई बंदा या कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल प्रॉपर इनवाइस इशू नहीं करता, तो उसमें भी कोई रियायत नहीं, सच नहीं है। मतलब ये है कि हम एक आध ऑफेंसेस को छोड़ के जो कि इतनी सीरियस नेचर की नहीं होती तो फिर उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो भी वैलिड रीजंस के ऊपर, अगर कोई हमें वैलिड रीजंस देता है तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफेंसेस में कोई भी रियायत नहीं दी जाती। KPRA की तरफ से नहीं, फॉरम्स है, अगर वो आगे फॉरम्स में जाते हैं उधर उससे कोई रिलीफ मिलता है तो फिर उससे हम कुछ नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल सही, लेकिन एक बड़ा सीरियस मैटर है ये और इस पर हमें सोचना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ ना होगी जिसकी वजह से फिर भी एक बात है कि गलती की गुंजाइश जो है वो ना बने। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, उसके बाद आपसे लेंगे हम यहाँ पर जो है एक अच्छा सा मैसेज इसी में कि जैसे मैंने आपसे भी जिक्र किया दुनिया की मुख्तलिफ सूरत हाल है या जराइम की सजाओं के हवाले से अवामी शऊर पैदा करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इक़दाम ये है कि हम अब ये आपका जो प्रोग्राम है ये भी उसी का एक हिस्सा है जी, एग्जैक्टली। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम में शऊर उजागर करें, वो हमें फ़ोन करें, हमसे सवाल पूछें। इसी हमने ऐसे आप लोगों ने ऐसे सवाल तैयार किए हैं कि उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा हमारी पूरी कम्युनिकेशन की टीम है कि जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अवेयरनेस वर्कशॉप्स जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो उनके लिए अरेंज करती हैं। हमारे जो होर्डिंग बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हम मैसेजेस चलाते हैं कि जिसके ऊपर आवाम में शऊर हो कि कौन सा टैक्स है, किधर कितना देना है, रेट क्या है। तो हम KPRA कोशिश कर रही है कि जितना हम कर सकते हैं इसमें फिर हमारे जो आप जितना USAID है और जो KPRA और जितने भी हमारे जो डोनर्स हैं वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारा जो मैसेज है वो आवाम तक पहुँचाने में। ऑलराइट, बिल्कुल सही। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते आपसे लेना चाहेंगे कि अच्छा सा मैसेज आज के बारे से आप क्या कहेंगे? वैसे आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन इसके अलावा भी कोई और पैगाम आप देना चाहें प्रोग्राम में? मैसेज तो देखिए मेरा एक ही मैसेज है कि मैं टैक्स का प्रोफेशनल हूँ तो टैक्स के हवाले से ही मैसेज एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मेरी सबसे अपनी आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी ड्यू टैक्स जिधर भी बनता है आप टैक्सेस दें, और चूँकि हमारा सूबा एक छोटा सूबा है और आपके टैक्सेस उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, आप अपने टैक्सेस दें और इंशाल्लाह आपके टैक्सेस आपके ऊपर ही लगेंगे, हम सब के ऊपर लगेंगे, क्योंकि हम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह इसी तरह हमारा जो सूबा है वो तरक्की करेगा। बिल्कुल सही मान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से यहाँ पर और KPRA से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा आज हमने सीखा यहाँ पर। सलमान, हम भी इजाजत लेंगे यहाँ पर, तो आपसे ये इजाजत गुजारिश है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये बताते जाए कि जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो हमें हमारी कल के शो के लिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ पर हमें यानी कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमें कॉल कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने अपने व्यूवर्स और लिसनर के लिए 3 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मुहैया किए। सबसे पहला रेडियो है, तो रेडियो पे कॉल के जरिए हमें हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। 92142001 हमारा टेलीफोन नंबर है। इसके अलावा KPRA के जो फेसबुक ऑफिशियल पेज है वहाँ पर भी हमें देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी हमें देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात
होंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच जी सलमान साहब एंड इमरान साहब, थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उसके साथ तमाम लिसनर्स आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ मौजूद थे। ये था मेरा आज का प्रोग्राम एतमाद खैबर, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए पेश किया जाता है मंगल और बुध के सुबह 3 बजे से 4 बजे तक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हमारे जो डिफरेंट हमारे रेडियो स्टेशन हैं। पख्तूनख्वा रेडियो FM 92.4 पेशावर से, FM 92.4 एबटाबाद, 92.4 कोहाट, FM 88 लकी बर्मा से बराह रास्त। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी, अगर है हयात आप लोगों से मैं कल मिलूंगी और कल होगी मुलाकात नए मेहमान के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये प्रोग्राम आपके लिए अमेरिकी अवाम और अमेरिकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के ताउन से पेश किया गया।